Good evening, everyone. I am Santosh Kumar. I'm the co-founder and director at Level Up IAS. I've been teaching civil services aspirants for 9 years, more than 9 years now. And today, I want to take a session on uh, how should a college student, that is, a person who is uh, having to attend college and do academic work, or a working person, a working professional, how should they be preparing for civil services examination? What are the key things that they have to keep in mind? Now, see, uh, if you're starting your preparation now and are aiming for 2026 while you're working or you're in college, that's not a right approach. Like 2026 will be too near. आप बस अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना? तो we will guide you, we will give you suggestion for कि I'm assuming that you're preparing for 2027 examination, and what should be the strategy in this period of preparation? That is, if we have around 18 months for mains, August में mains होगा, August 2027 में, if we have 20 months for mains, उस सिचुएशन तक कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर रखें? Now, before I go ahead, let's briefly talk about why prepare with jobs. Like, we'll see most of the students जो preparation कर रहे होते हैं, they basically are preparing full time when it comes to UPSC civil services examination. तो why prepare with jobs? देखो यार, जॉब के साथ प्रिपरेशन के ना बहुत एडवांटेजेस होते हैं. You would see that you'll always have backup and stability. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वी हैव सीन, जैसे अभी 2 साल पहले जो बच्चा रैंक 1 आया था, वो रैंक 1 6th अटेम्प्ट में जाके आया. अब 5-6 साल सब कुछ छोड़ के साइड में चले जाना सही नहीं रहता है. बट व्हेन यू हैव अ जॉब गोइंग, or when you are in college and you're also doing all your academic work there, it would always ensure that you have a backup with you. Now, बहुत सारा बैकअप पे रिलाई करना भी सही नहीं होता. You have to focus a lot on these studies, but if you prepare systematically, 4-5 घंटे हर रोज पढ़ सकते हो over the next 20 months, you will be able to systematically prepare for it. अभी हम उसके बारे में बात करते हैं. Then it also avoids gap year in case बच्चे ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल प्रिपरेशन के लिए आते हैं. That kind of gap year goes away, and this will help you even in your interviews में ना वो चीजें कि एक बच्चा 4 साल से 5 साल से प्रिपेयर कर रहा है, that doesn't give a good impression. Whereas if you are a working aspirant or you are someone who has just graduated from college और आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, that leaves an impression कि बच्चा डेडिकेटेड है, सिंसियर है, स्ट्रैटेजिक है कि कैसे कम टाइम में पूरी प्रिपरेशन कर पाया है. देन इट विल ऑल्सो लीड टू लेस फाइनेंशियल बर्डन. आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉलेज वाले फेज में जो आपको कॉलेज एक्सपेंसेस के लिए जो आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उससे ही आपकी पढ़ाई होगी. आपको ओआरएन में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. एक्स्ट्रा बर्डन जो आता है 20,000 रुपीज ऑफ रेंट एंड ऑल, दैट वुड नॉट अकर. फिर देयर विल बी लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. व्हाई? आप उन बच्चों से पूछिए जिनके 2 साल हो गए प्रिपरेशन के, एंड व्हेन दे आर गोइंग फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे आर वरीड, व्हाट इफ नहीं हुआ, 1 साल और देना पड़ेगा. एंड दिस हैम्पर्स देयर प्रिपरेशन. वेयरएज अ वर्किंग एस्पिरेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसके लिए ना एंजाइटी और स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा, एंड दैट इज व्हाई दैट पर्सन मे बी एबल टू परफॉर्म बेटर. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिस ईयर इन 2024 सिलेक्शंस जो भी 25 में जिसका रिजल्ट आया, दिस यथार्थ दीक्षित, वो पूरे टाइम वर्किंग थे एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड. अभी 2 साल पहले आई हैड अ स्टूडेंट Kumar Rajat. He became an IAS officer. He was working in a PCU. He was working in a PSU. तो working लोग select होते हैं without a lot of stress. इनका मेंस खत्म हुआ, उनका जॉब शुरू, मतलब उनका जॉब चलता रहता है. And that is why this also helps you. Then while you are working or while you are in college, you can spread your preparation over a period of 2 years. Whereas जब आप ना ऐसे आते हो कि नहीं मुझे जॉब छोड़ के आना है, यू ट्राई कि हर चीज 1 साल में कंप्लीट हो, और कई बार दैट्स नॉट इनफ. इन द प्रीवियस लास्ट वीक व्हेन आई टुक अ सेशन, आई स्पोक अबाउट कि व्हाई 1 year may not be enough for clearing this examination. You have to spread your preparation थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 years, even for like people who work full, who are preparing full time. I recommend आपको preparation 1.5 year का करना पड़ता है. For you people, I will make a plan of 20-21 months की
कैसे? by studying 5 hours a day most of the time except in the last 1 month of the examination, वहां हम ज्यादा पढ़ेंगे, we should be able to complete our preparation. Then there is also chance of academic overlap. जैसे I know some of my students जो ना philosophy पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो philosophy optional लेके पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो while working there is overlap in what they are doing and what they are supposed to study. ऐसे ही in college, you may be in college, you may be studying in Delhi University, you may be doing pol science there, you may be doing history there, you may be doing geography there, for that matter you may be doing mathematics there. एंड आपके कॉलेज की पढ़ाई और इसमें भी ओवरलैप हो सकता है, आपके जॉब में इस प्रिपरेशन में भी ओवरलैप हो सकता है, जो दोनों सेक्टर्स को बेनिफिट करता है. नॉट ओनली दिस, देखो मैं आई नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ना कॉलेज के साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद कैट दिया, जस्ट मेंस के जस्ट बाद कैट, 1-2 महीने बाद कैट का एग्जाम दिया. अब व्हाई आर दे डूइंग दैट? दे आर डूइंग इट बिकॉज बीटेक करा था, एप्टीट्यूड में अच्छे थे, 1-2 महीने की तैयारी के साथ कैट का प्रिपरेशन हो गया. बट ऑल ऑफ देम टोल्ड मी बिकॉज ऑफ देयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन दे हैव बीन एबल टू, जैसे लास्ट ईयर जिन बच्चों ने कैट के इंटरव्यू, दे हैव बीन एबल टू डू वेरी वेल इन देयर कैट इंटरव्यूज. वो मुझे बोल रहे थे हंसते हुए कि सर पता है, पूछ रहे थे कि आरबीआई गवर्नर कौन है, कैसे इलेक्ट होता है, और हमें हंसी आ रही थी कि यार ये सब क्या पूछ रहे हो, बिकॉज द पीपल हु वर टेकिंग इंटरव्यू वर अज्यूमिंग कि इंजीनियर आया है. बट this person while in college, while doing his engineering, had also prepared for civil services, so he knew history, he knew geography, he knew polity and other things also. तो ये overlap जो है ना, that also benefits. but ये overlap के चक्कर में अपने 2 साल खाली बैठ के बर्बाद नहीं करते. while working or while in college we should be able to prepare for it. Okay, now Kangna has sent me a question. Kangna, I'll take these questions. Give me a few minutes, like 10 minutes. Let me give you a broad overview. हमें करना क्या है, and then I'll take all the questions. ऐसे बीच में मैं questions पे जाऊंगा, तो पूरा अपना discussion थोड़ा सा divert हो जाता है. तो I'll take all the questions, but for now, keep your questions with you, keep it written with you, so that you don't forget it, and post it in the end. So these are some of the reasons why with job या with college प्रिपरेशन शुड बी डन. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं करना चाहिए, बट कॉलेज के साथ करते रहोगे ना, अपने फायदे रहेंगे. जॉब के साथ करोगे, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब में ना आप 6-7 बजे घर आ सकते हो, थोड़ा रेस्ट करके पढ़ सकते हो, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन वॉचिंग रील्स, स्पेंडिंग टाइम ऑन फोन विथ रैंडम पीपल और गोइंग एंड पार्टिंग एंड गेटिंग ड्रंक. वो सब लाइक जॉब के बाद कॉर्पोरेट्स में ये कर रहे होते हैं लोग. Don't do it for 2 years, right? But again, अब strategy discuss करने से पहले I want to talk about some of the mistakes जो full time aspirants होते हैं ना, they do some of the mistakes, and जो full time नहीं, sorry, जो working aspirants होते हैं, they are not able to avoid these mistakes. They kind of end up doing it. जैसे when you start your preparation, आप ना 3 चीजें एक साथ करने लग जाते हो. एक आपका जॉब या कॉलेज, दूसरा जीएस, तीसरा ऑप्शनल. अब पता है ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं. यू कैन डू 2 ऑफ देम. दैट इज, अगर आप जॉब और कॉलेज नहीं कर रहे हो तो जीएस एंड ऑप्शनल साथ में प्रिपेयर कर सकते. बट अगर आप जॉब एंड कॉलेज कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो या फिर यूर पार्ट ऑफ योर बीए, एमए, बीटेक, एमटेक, एनीथिंग, देन डू वन थिंग एट अ टाइम. जॉब के साथ जीएस करो, वो कंप्लीट करेंगे, फिर ऑप्शनल पे आएंगे, या फिर ऑप्शनल करो, वो कंप्लीट करेंगे तो जीएस पे आएंगे. डू नॉट स्टार्ट ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर. मैं आपको अभी आई विल गिव यू अ प्लान वेयर यू आर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स अ डे, 4 to 5 आवर्स अ डे, और कैसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें. सम ऑफ यू मे फील आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई विल स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे. यार देखो, आप 10 to 6 जॉब करने के बाद 10 घंटा नहीं पढ़ पाओगे. यू मे थिंक कि you will sit for studying at 8 in the morning and then 8 in the evening and you will keep studying till morning. वो viable नहीं है, वो feasible नहीं है. तो अभी के लिए when एक चीज जो करनी है वो है with job or with college, start one thing, finish that, then we'll keep revising it, then start another thing. Don't start both the things at one go, else कुछ भी नहीं होगा and 2 years down the line you will feel like यार preparation में कुछ हुआ नहीं है, अभी I'm not prepared for the exam.
Avoid this mistake. This I tell even to a lot of students जो already working हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑप्शनल का भी कोर्स ले लिया है, उन्होंने जीएस का भी कोर्स ले लिया है, फिर बताते हैं सर मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं किसी पीएसयू में जॉब करता हूँ, या मैं दुबई में रह रहा हूँ वहां पे जॉब कर रहा हूँ. ये चीजें ना मैं फिर उन बच्चों का एक कोर्स का फी रिफंड करवाता हूँ. मैं बोलता हूँ ये कोर्स तुम बाद में ज्वाइन करो, एक बार में एक ही चीज करनी है. मतलब एक तो जॉब कर रहे हो, साथ में दूसरा जीएस या ऑप्शनल में से कोई एक चीज. सेकंड, मेकिंग टू एम्बिशियस स्टडी प्लान. ये मेरा मिस्टेक हो गया. मेकिंग टू एम्बिशियस स्टडी प्लान. टू एम्बिशियस स्टडी प्लान क्या है? मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा. देखो, with job you won't be able to do it, with college you won't be able to do it. Don't make that kind of plan. Respect your body. Respect your body. Sleep for 6 to 7 hours. 30 minutes to 45 minutes वॉक कर लो. या तो वॉक आपके डेली रूटीन का वैसे ही पार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू मे बी वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो टू कॉलेज, मेट्रो टू जॉब, और while coming back you may be doing that, or specifically find some time to walk. Have a proper schedule कि मैं इतने बजे सो जाऊंगा, इतने बजे उठूंगा. Have good food. 5 घंटे पढ़ने का, 4 से 5 घंटे पढ़ने का निकालो. Don't overkill. Don't overburden yourself. उससे ना कुछ नहीं होता है. ना आपका जॉब अच्छे से होगा, ना कॉलेज अच्छे से होगा, और ना ही पढ़ाई अच्छे से होगी. जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चलते हो ना, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, आप अपने स्लीप का भी ध्यान रख रहे हो, यू विल बी काम. यू विल बी अब्सॉर्बिंग मोर थिंग्स इन कॉलेज, या in your job you'll be performing well, and then after relaxing for some time you'll also be able to study. But if you're not sleeping on time, ना जॉब अच्छे से होगी, जॉब में मैनेजर गालियां देगा, वहां से फ्रस्ट्रेट होके आओगे, घर पे आओगे, घर पे बुरा फील हो. जब दिन भर आपको बुरा फील हुआ है, आप स्ट्रेस में रहे हो, हाउ विल यू बी एबल टू स्टडी एट नाइट अगेन? है ना, दैट्स नॉट वायबल. तो रियलिस्टिक प्लान बनाओ, है ना. मेकिंग टू एम्बिशियस प्लान्स too ambitious study plans are also a mistake that has to be avoided. Third thing is lack of proper revision plan. मैंने ये भी देखा है, वर्किंग एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, they have job, fine, वो शाम को आए and they started studying Lakshmikant. Very good. Lakshmikant is a important source for polity that we should be studying. और हिस्ट्री की कोई बुक, या और वो पढ़ते, 1 महीने पढ़ के उन्होंने पूरा लक्ष्मीकांत कवर किया. फिर नेक्स्ट मंथ दे जंप ऑन टू लेट्स से हिस्ट्री. From polity they jump on to history, फिर they jump to geography, फिर they jump to economy. Fine, अच्छा चल रहा है. But ना इस प्रोसेस में if you are not revising polity, 5 months down the line you will not remember anything in polity. आपने पहली बार पढ़ा है ये सब्जेक्ट यार. In first month you may have felt like, oh now I understand everything, but that's not part of your day-to-day routine. You're not working in parliament that you see the functioning of parliament every day. So एक बार पढ़ लिया है तो आप उसका एप्लीकेशन देख पा रहे हो तो याद रहेगा. आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. एंड कई बार आई हैव सीन वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, जो रोज वर्किंग है, 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि ना दे डू नॉट हैव अ रिविजन प्लान इन देयर स्टडीज, इन देयर ओवरऑल प्लान. तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू अवॉइड. वी विल क्रिएट अ स्मार्ट रिविजन लूप सो दैट every 3 day, every 7 day, every 30 day, every 3 months we are giving some टाइम कि यार ये वीक पूरा, हर 3 महीने बाद एक वीक पूरा क्या करेंगे, लेट मी रिवाइज एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन लास्ट 3 months रादर देन जंपिंग ऑन टू द न्यू सब्जेक्ट. ऐसे ही एट द एंड ऑफ द वीक, संडे को बैठ के नई चीजें नहीं पढ़ेंगे, पूरे वीक में क्या किया है लेट्स फर्स्ट रिवाइज इट. मंथ एंड में एक दो दिन का पूरा गैप लोगे, क्या करोगे, रिविजन करोगे, अभी बात करते हैं. बट विदाउट दिस, नो मैटर हाउ सिंसियर यू आर, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, you won't be doing well. एक और mistake which students do, they join test series, they join mentorship programs. अब देखो, as someone who's running a coaching institute, मेरे को भी प्रमोट करना चाहिए कि हाँ हाँ ज्वाइन कर लो, नहीं करना चाहिए. पता है, टेस्ट सीरीज और कोई भी mentorship program and all those things should be joined only once you are done with your foundation. I'm not saying foundation का कोर्स ही लो, फाउंडेशन खुद से कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, देखो जो आपका प्रिपरेशन हुआ है उससे पीवाईक्यूज जितने पूछे गए, आर यू एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम. उसके बाद यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज. आई हैव सीन स्टूडेंट्स 15 महीने का टेस्ट सीरीज का प्लान ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे थिंक दे विल स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट. नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्किंग, मोस्ट क्या 99% of the working aspirants will not be able to follow the test series.
टेस्ट सीरीज में जो पैसा लगाया वो भी जाता है और फिर अपना प्लान भी अफेक्ट होता है. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच टाइम यू विल टेक फॉर इकोनॉमी टू बी कंप्लीटेड. You may be finding it difficult, and rather than taking 1 month, you may take 2 months there. And thus आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अफेक्ट होता है, आप पीछे हो जाते हो, फिर वो टेस्ट सीरीज करना ही छोड़ देते हो. फिर आप बीच में अपना प्रिपेयर कि एम आई प्रिपेयरिंग राइट, इफ आई एम नॉट एबल टू फॉलो दिस टेस्ट सीरीज, एम आई इन द राइट डायरेक्शन. ये सारे कंसर्न्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अवॉइड करना है. पहले अपना कोर प्रिपरेशन करेंगे. क्या प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट किसका? PYQs. PYQs are the most important source rather than running behind a lot of test series, running behind mentorship program. जब तक अपना फाउंडेशन कंप्लीट नहीं किया है, फाउंडेशन you may do it at your own, you may do it at some coaching institute, you may do it through Telegram videos or anything. पर जब तक फाउंडेशन कंप्लीट नहीं किया है, do not join test series. फाउंडेशन के साथ जैसे आपने सपोज you studied हड़प्पन कल्चर, आपने हड़प्पन कल्चर की पूरी पढ़ाई कर ली. लुक एट ऑल द PYQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ हड़प्पन कल्चर. आर यू एबल टू आंसर देम? लुक एट ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्राई राइटिंग दोस आंसर्स. नाउ यू हैव AI टूल्स दैट कैन हेल्प यू इवैल्यूएट दोस आंसर्स आल्सो. गेट इट इवैल्यूएटेड एंड सी आप उसे और कैसे इंप्रूव कर सकते थे. ओनली व्हेन यू आर डन विद PYQs तब जॉइन अ टेस्ट सीरीज. देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है? आपको कोर्स में एडमिशन दिलवाना, आपसे पैसे लेना, चाहे वो कोर्स सुटेबल हो ना हो. एंड दैट्स व्हाई I have seen beginners को टेस्ट सीरीज चिपकाया जा रहा होता है, एंड दैट हार्म्स दैट स्टूडेंट्स प्रिपरेशन. वो ना 1-2 साल बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज के चक्कर में लगा रहता है, अपना कोर स्ट्रांग नहीं कर रहा होता है. वो नहीं करना है. हमें लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, हमें सब्जेक्टिव टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, बट आफ्टर वी आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द PYQs. So these are some of the mistakes that I want you people to avoid at any cost. Let's come to our plan. देखो, जो प्लान मैं अभी बताने जा रहा हूं उसमें आई नीड 5 hours डेली. 4 to 5 hours भी चलेगा, और वीकली, बिकॉज सैटरडे संडे को आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, तो वीकली टोटल अराउंड 35 to 40 hours. वैसे 5 hours डेली करोगे तब भी 35 hours हो जाएगा, बट ऑन सैटरडे संडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज यू विल हैव टू डू रिविजन, यू विल बी पुटिंग सम मोर एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट. मे बी सैटरडे संडे आप 8-8 घंटे पढ़ रहे होगे, तो एवरेज वीकली टाइम विल बी अराउंड 40 hours. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल. हाय सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ LMP, कैन यू प्लीज अपलोड दिस ऑन योर पोर्टल? बेटा, ये LMP वाले बच्चों के लिए नहीं है, आपका प्लान ऑलरेडी चल रहा है, यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. ओके गाइस, प्लीज डू नॉट पोस्ट क्वेश्चंस अभी, वो ना फिर नीचे चले जाएंगे और मैं उन्हें बाद में देख नहीं पाऊंगा. I'll ask you कब क्वेश्चन पोस्ट करने हैं, तब आप पोस्ट करिएगा. पहले फर्स्ट थिंग, द प्लान दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर 2027, for students who are preparing for 2027, and in this plan I want you to give around 5 hours, 4 to 5 hours daily. अगर 4 to 5 hours daily नहीं दे पा रहे, जैसे some students may be working in some site, वो 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन खाली रहते हैं. In a week, give 40 hours. That is what we need. So please explain completely in English. Okay, Arun, I'll do that. I'll ensure that I'm speaking everything in English. In case some student is facing problem in English, they can ask me to repeat it. I'll repeat it in Hindi as well. Okay, so first thing that I need is this. If you cannot dedicate this much time, don't start preparing immediately. Like, don't start targeting 2027. Rather, start reading books. If you can give only 2 hours every day. So right now you are not in a position to prepare for civil services examination in a full-fledged manner. I'm not saying you should not prepare, but for next few months, till the time you're not able to find enough time, you start reading books, start enjoying the process. Read history, read polity, read geography, understand a bit of economy, not for exam, just for your understanding, so that you remain in the system. If you want to prepare seriously for 2027, you should be able to give these 4 to 5 hours. Now, your preparation, I'm dividing into 5 phases. Let's say today is 1st of November 2025 से लेकर August 2027. August 2027 में विल बी राइटिंग मेंस. ये अपना टारगेट है. यहां पे I'm dividing
your preparation in 5 phases. Okay, in the first phase, the first 6 months, November 2025 to April 2025, ये 6 months है. In these 6 months, I want you to finish your foundational courses. फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 चीजें, एंड एथिक्स. These are the 5 things that we should be completing in first 6 months. है ना? अगर टाइम मिलता है तो साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट ऑल्सो, अगर नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, वी कैन डू इट लेटर ऑल्सो. ओके, नाउ हाउ शुड वी डू इट? देखो, फॉर 6 days, मंडे टू सैटरडे, स्टडी फॉर 3 hours a day and revise for 1 or 2 hours every day. जो पढ़ा है ना उसे keep on revising. देखो, revision is important. This one mistake that we have to avoid, what? कि we keep on studying things and we don't revise. आप में भी 4 घंटे पढ़ लो, but revise for 1 hour daily. Everything that you have studied, in the end, revise it once. कि यार क्या हुआ, overall framework क्या है, let's understand that. Then on Sundays, in 6 days, you will complete substantial portion, revise the whole thing. And at this time, solve PYQs. Let's say you have started studying Lakshmikant. आपने लक्ष्मीकांत यहाँ पे पढ़ा है, हर रोज भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया है. You've understood something, or you may be doing some classes. You attended 6 classes, you have done its revision, you have made notes, you have done its revision. On Sunday, rather than starting to study something new, first thing that you do is you revise all the things that you have done. Solve PYQs. संडे को सपोज while doing पॉलिटी आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स इतना पढ़ा है, फाइन, टेक PYQs of this area and attempt it. See if you are able to do it. If you are not able to do it, you may have to do some value addition in your notes. Do it on Sundays. In the same way, on Sunday, try to write answers. कौन से answers? जो पहले पूछे जा चुके, PYQs होंगे. Don't join a test series immediately. Unless it's already part of your GS Foundation course जो साथ में चल रहा है, don't join a separate test series which is not in sync with your preparation. Don't try to make your preparation in sync with the test series in the beginning. That is done in the later stages. If आपकी preparation से sync में, suppose you have joined GS Foundation somewhere and in sync with that there are tests on Sunday, do that. Otherwise, focus first on completing PYQs. So, first phase, phase 1. Your foundational preparation. हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एथिक्स. ये 5 चीजें हमें कंप्लीट करनी है पहले 6 मंथ में. साइंस एनवायरमेंट हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसे बाद में भी कर लेंगे. बट बाय एंड ऑफ अप्रैल दिस इज व्हाट वी शुड बी अचीविंग. ओके, एंड बिकॉज यू आर डूइंग रिविजन एवरी संडे, एट द एंड ऑफ मंथ ऑल्सो गिव 2 days का ब्रेक अपने आप को टू रिवाइज द होल थिंग दैट यू हैव स्टडीड इन द मंथ. ऐसे ही एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, डू दैट. एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, डोंट ओनली गिव योरसेल्फ 2 days, पूरे 7 दिन क्या करो, रिवीजन ही करो. सो दैट आपने मान लो फर्स्ट मंथ में हिस्ट्री किया, सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में यू डिड एंशिएंट मिडिवल कल्चर, सेकंड मंथ में यू आर डूइंग ज्योग्राफी, थर्ड मंथ में यू आर डूइंग पॉलिटी. व्हेन यू कंप्लीट पॉलिटी, 7 दिन का ना गैप दो अपने आप को एंड रिवाइज एंटायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगेन बिफोर जंपिंग ऑन टू लेट्स से इकोनॉमी, एथिक्स एक्सेट्रा. तो in 6 months finish this portion, solve PYQs, write answers. फिर क्या करना है? Phase 2, focus on optional. Now you may be wondering, sir, where is society, social justice, governance, IR, internal security? ये तो आपने छोड़ ही दिया. नहीं, छोड़ा नहीं है, प्लान में चल रहे. पर देखो जनरली क्या होता है ना, मई में आपके वो शुरू होने लग जाते हैं, ऑप्शनल के कोर्सेज शुरू होने लग जाते हैं. अभी आप जब कोई कोर्स ज्वाइन करोगे ना, थोड़ा गड़बड़ रहेगा. तो फ्रॉम मे आई वांट यू टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑप्शनल. यू मे जॉइन अ कोर्स, यू मे डू इट थ्रू सेल्फ स्टडी, यू मे डू इट थ्रू videos available on YouTube, you may do it through videos available on Telegram. Here I'm not here to like ये वाला कोर्स खरीद लो, ये सब नहीं. But these 6 months focus on optional. ऑप्शनल का roughly 2.5 hours का क्लासेस होगा आपका. फॉर ऑप्शनल आई जनरली रिकमेंड क्लासेस कर लेनी चाहिए, जहां से भी आप करना चाहें, जैसे भी करना चाहें. फाइंड अ गुड टीचर, डू इट. यू विल हैव 2.5 hours ऑफ क्लासेस.
you will do 1.5 hours of revision. क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे रिवाइज करते जा रहे हो साथ में. एनीथिंग दैट हैज बीन डन इन क्लास यू शुड बी लाइक आई नो इट. मुझसे पूछ लो, आई नो इट. बट दिस इज ओनली 4 hours. Notice it carefully. Another thing that I want you to do is in 1 hour keep revising phase 1. आपने phase 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब कंप्लीट किया है ना, उसे पूरा छोड़ नहीं देंगे 6 months के लिए. Every day 5 hours, every day 4 hours we are doing for optional. 2.5 hours plus 1.5 hours. 1 घंटा निकालो किसके लिए कि यार मेरा हिस्ट्री पढ़ चुका हूं मैं, लेट मी कीप रिवाइजिंग इट सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट. वंस योर हिस्ट्री रिविजन इज डन, वो 1 hour में क्या करो, पॉलिटी रिविजन पे आ जाओ. फिर 1 hour में क्या करो, ज्योग्राफी पे आ जाओ, फिर इकोनॉमी पे आ जाओ. सो दैट इन दीस 6 months व्हाइल योर फोकस इज ऑन ऑप्शनल, थोड़ा सा रिविजन, नई चीजें नहीं पढ़नी है. मैंने बोला इन द बिगिनिंग ओनली आई सेड यू डू नॉट स्टार्ट विद ऑल 3 things एट अ टाइम. यू डू नॉट डू 3 things एट अ टाइम. जॉब, ऑप्शनल, जीएस, ये तीनों एक साथ नहीं करते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, जॉब या फिर कॉलेज एंड ऑप्शनल. बट 1 hour वी विल कीप गिविंग फॉर revising whatever we have done in GS so that remains new to us. We should be like हाँ ये सब आता है, सबके PYQ सारे आते हैं मुझे. Generally optional classes goes on from Monday to Friday. तो यहां पे आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन रहेंगे. संडे को प्रैक्टिस PYQs, राइट एटलीस्ट 10 आंसर्स एवरी संडे. एंड यहां पे देखो सैटरडे को डू वैल्यू एडिशन इफ नीडेड टू कंप्लीट सिलेबस. तो इसमें इसका फंडा क्या है, देखो मंडे टू फ्राइडे यू हैव स्टडीड, you have revised, but on Saturday you may feel like कि on Saturday look at PYQs and see जो आपने पढ़ा है उससे PYQs सारे हो जा रहे हैं क्या. अगर नहीं हो रहे तो you may have to do some value addition. This course may not be good enough. These classes may not be good enough. ऐसा like there are very few teachers जो ना पूरा सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर करते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है. तो आप यहां पे क्या करिए, वैल्यू एडिशन. सैटरडे इज फॉर वैल्यू एडिशन. सैटरडे इज फॉर नॉट फॉलोइंग द क्लास, बट क्लास जो हो गया है 5 दिन का उससे देखो रिवाइज आप करते रहे हो. आर यू एबल टू आंसर ऑल द PYQs? इफ देयर इज अ PYQ फ्रॉम दैट टॉपिक यू आर नॉट एबल टू आंसर, डू वैल्यू एडिशन हियर. एंड संडे को प्रैक्टिस PYQs, दैट इज राइट एटलीस्ट 10 आंसर्स. आपने इतने टाइम पढ़ा है ना, एवरी डे यू आर स्टडिंग, देन ऑन सैटरडे you did value addition. You may have read some books. Teacher may have recommended you other than classes. You read this book, you do that, and then on Sunday you practice PYQs. Meanwhile, जो ये 1 hour revision of phase 1 will go on for all 7 days. हम 7 दिन ये 1 घंटा revision करते रहेंगे. In 6 months from May to October, May, June, July, September, October. ये 5 ही हुए ना, May, June, July, September, October. हाँ, वो थोड़ा नवंबर तक जा सकता है. इन 6 months. जनरली ऑप्शनल कोर्सेज 5 months का बोलते हैं टीचर, पर 6 महीने चलता है. हमारे यहाँ ऑप्शनल कोर्सेज सारे 6 महीने चलते हैं, सोशो एंथ्रो. तो आपको 6 months के लिए ये करना होगा. बट इसमें देखो, यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग इन योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी. यू आर नॉट फॉरगेटिंग दैट बिकॉज एक तो आपने डेडिकेटेडली उसे 6 महीने पहले पढ़ा है, एंड देन यू हैव केप्ट ऑन रिवाइजिंग इट, सो दैट एट द एंड ऑफ अक्टूबर यू आर नॉट फीलिंग कि यार I've forgotten that. While you have added optional also. In the third phase, I want you to focus on mains only areas. See, phase 1 पे क्यों आ गया मेरे पास? I want you to focus on mains only areas. जैसे सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी. ये छोटे एरियाज हैं. They take a few classes. इसको कंप्लीट करिए अच्छे से, बिकॉज दिसंबर के बाद क्या होगा, हम थोड़ा प्री पे फोकस करेंगे, तो उससे पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए. नाउ मंडे टू फ्राइडे स्टडी मेंस ओनली टॉपिक फॉर 2 hours एंड रिवाइज इट फॉर 1 hour. जनरली दीस टॉपिक्स आर स्मॉलर, तो इसमें आपको 3-4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं. 2 घंटे रोज पढ़ो, 1 घंटे उसे रिवाइज करो. पर ये फिर रिमेनिंग 2 hours आई वॉन्ट यू टू गिव फॉर दिस. स्टार्ट डूइंग CSAT फॉर 1 hour डेली. CSAT भी आएगा प्रीलिम्स में, तो 1 घंटे के लिए करना शुरू कर दीजिए. एंड कीप ऑप्शनल, keep doing optional for 1 hour daily. That is also crucial. That's also important. आप ऑप्शनल भूलना नहीं है. ऑप्शनल आपने 6 महीने कर लिया, रिवाइज किया, PYQs लिखे, सब किया है, बट उसे भूलना नहीं है. Is it possible to take out 2 hours here? Yes, because जो ये टॉपिक्स है ना,
society, governance, social justice, international relation, internal security, they are not big areas, so that they can be done in 2 hours with 1 hour of revision. You can keep working. Monday to Friday do this. Saturday को revise entire week's GS coverage. संडे को रिवाइज एंटायर वीक्स ऑप्शनल कवरेज. आप ऑप्शनल रिवाइज करते रहते ना, संडे को से दोबारा रिवाइज करो. तो देखो, वी आर नॉट स्टॉपिंग टू स्टडी ऑप्शनल इन अक्टूबर. हम उसको बाद में भी रिवाइज करते रह रहे हैं. दिस इज द थर्ड फेज. बाय एंड ऑफ थर्ड फेज आप मेंस के लिए काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड है. अभी आपने टेस्ट नहीं लिखे, टेस्ट सीरीज नहीं किया है, बट यू हैव रिटन पीवाईक्यूज, यू हैव रिटन मेंस आंसर्स एंड यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. अब हम आएंगे फोर्थ फेज में, which is the prelims phase. देखो, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ा है पहले. साइंस, टेक, एनवायरमेंट यू मे हैव स्टडीड और यू मे नॉट हैव स्टडीड. तो अगर आप पहले कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अभी पहले साइंस, टेक, एनवायरमेंट कंप्लीट करिए, बिकॉज दे मे टेक मोर टाइम, एंड देन कीप रिवाइजिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी. कीप डूइंग दिस इन 3 months. 3 months मीन्स जैन, फेब, मार्च में रिविजन, प्री की तैयारी पूरी कंप्लीट करिए. क्रिएट अ स्मार्ट रिविजन लूप. एवरी 3 day यू रिवाइज, एवरी 7 day यू रिवाइज, एवरी 30 day यू रिवाइज, एवरी 90 day यू रिवाइज, सो दैट एट द एंड ऑफ मार्च आपका पूरा पढ़ाई हो रखा होगा. और इस फेज में यू मे ऑल्सो हैव टू गिव 2 hours एवरी डे ऑन सीसैट. नाउ देखो, अब सीसैट पे 2 hours या हाफ एन आवर या 1 hour एवरी डे, इट विल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द सेंस, it will depend on how good you are at CSAT. There may be some students जो रोज आधा घंटा देंगे और उसमें भी they're like comfortable. There may be some students who are very weak in maths and they may have to give 2 hours, but don't give more than this time. इस अभी join a test series और उसे systematically खत्म करो. आपने objective questions PYQs कर लिए हैं सारे पहले, तो इस time you should join a test series. इस time lots of coaching institutes take open mock tests, which is available. Anyone can register and attempt those tests. Do that. And if possible, last 1 month में, कब? अप्रैल में आप रिवीजन करिए, मई में सैबैटिकल ले लीजिए जॉब से. एग्जाम से 1 महीने पहले आप सैबैटिकल लीजिए. दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इन लास्ट 1 month आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट, सारे रिविजन्स वगैरह इफेक्टिवली करने पड़ेंगे. इफ यू हैव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद जॉब, इफ यू हैव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स, दैट मे क्रिएट problem in the preparation. तो मैं देखो, अभी तक before 2027 I have not asked you to take leaves, but last 1 month May 2027 में you should be taking. अगर 1 महीने का नहीं मिल रहा, 2 week का मिल रहा है, लीजिए. क्योंकि ना, आपने देखो 1.5 साल इतनी पढ़ाई करी है, इट्स इंपॉर्टेंट कि एक बार बस पूरा उसमें घुस जाओ. डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. जॉब के साथ करते रहो, ऑल गुड, बट दिस वुड बी क्रूशियल. दिस वुड बी हियर. फोकस एंटायरली ऑन प्रीलिम्स. और यहां पे आई हैव नॉट रिटन इट, बट आई जनरली दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स. अगर आप टेस्ट्स में अच्छा कर रहे हो, देन कीप रिवाइजिंग योर ऑप्शनल फॉर 1 hour a day. ऑप्शनल को ना पूरा 5-6 महीने के लिए नहीं छोड़ना है. जैसे यहां पे प्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो मेंस के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं, बट ऑप्शनल को दिसंबर के बाद पूरा नहीं छोड़ेंगे. छोड़ देंगे अगर हमारे प्री के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं. विल प्रायोरिटाइज प्री प्रिपरेशन इन दिस फेज, बट इफ इन योर प्री टेस्ट यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, यू आर कंफर्टेबल, यू डोंट हैव टू टच ऑप्शनल. देन वुड कम द लास्ट फेज, द मेंस फेज. अब यहां पे ना देखो, मेंस में एटलीस्ट जब रिजल्ट आ जाए प्री का, उसके बाद से ना अगेन मेडिकल लगाओ, कुछ करो, बट मेंस का प्रिपरेशन के लिए ना थोड़ी मेहनत ज्यादा चाहिए होती है, पार्ट टाइम नहीं हो पाता है. तो वाइल पूरे टाइम आप पढ़ते रहे हो, यहां पे लास्ट 2 months ट्राई टू अगेन टेक लीव. दिस पीरियड, इन दिस पीरियड I cannot give you a plan only for 5 hours a day. That won't be enough. 4 to 5 hours optional revision, 4 to 5 hours of GS and SC revision. These are the things that you will have to do. आपको 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा. Every Sunday attempt 2 tests, एक GS या SC का और एक ऑप्शनल का. आपको ये करते रहना पड़ेगा. तो दो द प्लान इज फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, बट मैं जितने वर्किंग एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो मेंस के टाइम 2-3 महीने पूरा छुट्टी लेते हैं. जिनको छुट्टी नहीं मिल रही होती है वो मेडिकल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं.
पर वो लास्ट में 2-2.5 महीने छुट्टी लेते हैं, तभी ना देयर इज अ लॉट ऑफ practice needed, you'll be able to do it if this happens. So in this phase, 1/2 of the day give to optional, संडे को उसी फर्स्ट हाफ में ऑप्शनल का टेस्ट लिखो, सेकेंड हाफ ऑफ द डे गिव टू जीएस और इससे संडे को उसी जीएस एसए का टेस्ट लिखो। प्रिपरेशन आपकी पहले हो चुकी है इन सब्जेक्ट्स की। Here you should not be needing to study new things, rather you should be revising those things and writing tests, revising those things and writing tests. If you do it systematically, there would be high chances that you clear exam in the first attempt. जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चा अपना पूरा मेंस का तैयारी ना जून जुलाई अगस्त के लिए छोड़ देता है, एंड देयर दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर. दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. ओके, तो these were the 5 phases of exam. इसके आगे क्या है, इसके आगे लाइक लेवल अप आईएएस का भी जीएस फाउंडेशन कोर्स 2027 का अभी नवंबर में शुरू हो रहा है. I'll not take a lot of time. I'll just give you a brief idea कि what we are doing here. First, we are focusing on foundational aspect. That is नवंबर से लगभग सितंबर नेक्स्ट ईयर तक विल फोकस ऑन योर फाउंडेशनल प्रिपरेशन पूरा. इसमें प्री मेंस दोनों का प्रिपरेशन होगा. फिर वी विल हेल्प यू रिवाइज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. जैसे आप यहां पे आएंगे, इंटेंसिव मेंस रिवीजन सितंबर टू दिसंबर में होगा, फिर इंटेंसिव प्री रिवीजन जनवरी टू मई में होगा, एंड फिर आफ्टर प्री यू अगेन हैव टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. तो बेसिकली जीएस फाउंडेशन कोर्स इज सच दैट इफ यू गिव 4-5 आवर्स डेली विल मेक श्योर दैट आपका सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो रहा है. दिस इज नॉट ओनली फॉर वर्किंग एस्पिरेंट, दिस में बी फॉर फुल टाइम एस्पिरेंट्स ऑल्सो. बट फुल टाइम एस्पिरेंट्स से थोड़ा लेट भी करेंगे तो चलेगा, वर्किंग एस्पिरेंट्स को अभी करना पड़ेगा. बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स कोई लेना ही है. आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, और आप कोई और मैकेनिज्म, आप किसी और इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ सकते हो. इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली ज्वाइन लेवल अप आईएएस. अगर आपको अफोर्डेबिलिटी इश्यूज है, बहुत सारे यूट्यूब, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे है, बहुत सारे टेलीग्राम पे वीडियोस मिल जाते हैं, आप वहां से भी कर सकते हो. बट एक फाउंडेशनल कोर्स अपने पास रखना, जहां पे भी सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो रही है, वो लेक्चर्स, वो वीडियोस देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हैं. ओके, तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. मैं जनरली 5 फेजेस की बात करना चाहता. अब यू मे हैव सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी द सोर्सेस एंड ऑल. आई विल टेक ऑल दोस क्वेश्चंस. पहले लेट्स स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. कंगना ने पूछा था, गुड इवनिंग सर, आई हैव डन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम प्राइम 6 years बाद दिल्ली में वैकेंसी आई है एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वैकेंसी, बट आई एम आल्सो एनरोल्ड इन यूपीएससी कोर्स बिकॉज आई स्टार्ट किया है, तब वैकेंसी नहीं आई थी. सो व्हाट शुड आई डू नाउ? किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए, कैसे मैनेज करें? बेटा देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू. आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक गवर्नमेंट जॉब, चाहे एलिमेंट्री स्कूल के टीचर का होने का कंपल्शन है, तो अप्लाई फॉर दैट एग्जाम, प्रिपेयर फॉर इट एंड गेट सिलेक्टेड. वो ना आपको काम रखेगा, कंपोज रखेगा इन योर एंटायर प्रिपरेशन. अदरवाइज ना दिस प्रिपरेशन कैन बिकम वेरी स्ट्रेसफुल. तो हैविंग एन ऑल्टरनेटिव जॉब इज अ गुड थिंग. उसके बाद जॉब से 4 महीने की छुट्टी ले लो, पढ़ाई के लिए, वो सब करने के लिए, ये कर सकते हो, है ना. बट इफ यू थिंक अरे एलिमेंट्री स्कूल में जॉब है, मैं से बाद में भी कर लूंगी कभी, या प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मैं वहां कहीं चली जाऊंगी, अभी लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ फॉर फुली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, you can also do that. So it will depend on your family background. How much pressure does you have from your parents to get a job as soon as possible? If there's a lot of pressure, apply for this job, get it, and then you keep preparing for UPSC. If parents are like, बेटा तू अच्छे से पढ़, don't worry about anything else, UPSC सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ मत सोच, लगी रहे, हम तेरे साथ खड़े हैं, you focus on UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन and nothing else. आप बीच में अलग अलग एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एज इफ नाउ रेलवे की वैकेंसी आई है तो रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, डेली 4-5 जॉब इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, टारगेट यूपीएससी 2027 है, बट कैसे करना है, कौन से ऑर्डर में करना है, ये समझ नहीं आ रहा. बेटा ये तो मैंने अभी आंसर किया. आई थिंक ये क्वेश्चन शुरू में पूछा था. हाँ, अभी आई हैव आंसर्ड कि क्या ऑर्डर होना चाहिए. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट. आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड.
Sir, I'm done with the foundation course from Vision IAS and third year of college will give attempt in 2027 and currently revising it from starting. Will start optional foundation from level up itself from January. Am I on right direction? Yes बेटा, you're on right direction. आपने अगर फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, ऑप्शनल शुरू करिए. अब ऑप्शनल ना लेवल अप आईएएस में कोई ऑप्शनल जनवरी में शुरू होगा नहीं. हमारा एंथ्रो शायद मार्च या अप्रैल में शुरू होगा, उसी टाइम सोशो भी शुरू होगा. आपको उस टाइम करना होगा. बट वन मोर सजेशन दैट आई विल हैव इज, बिकॉज आप ऑप्शनल कर रहे हो, अगर कॉलेज के साथ कर रहे हो तो जस्ट डू ऑप्शनल. बट अगर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ऑप्शनल कर रहे हो तो जस्ट गिव हाफ डे टू ऑप्शनल. रिमेनिंग हाफ डे में ना यू कीप रिवाइजिंग योर जीएस. जो आपने जीएस पढ़ा है यू कीप अटेम्प्टिंग टेस्ट्स और पीवाईक्यूज. यू कीप डूइंग दैट. जीएस को पूरा छोड़ना मत. Sir, I completed foundation. I gave 2 serious attempts, could not clear prelims. Now I am planning to work for few months and planning for MBA in 2027. I'll give another attempt for UPSC. Okay. मतलब इसमें सवाल नहीं समझ में आया बच्चा मुझे. हरिओम इज आस्किंग, सर आई हैव गिवन, बेटा आपके कुछ डाउट्स है बाद में पूछोगे. ओके सर, आई हैव गिवन 2 UPPCS prelims and will give 2026 UPSC pre. How can I manage after taking classes from your coaching for 2027? बेटा अगर 2026 में प्री देना है तो 27 के क्लास क्यों लोगे आप? If you want to give if you are taking 27 के लिए क्लासेस, don't appear for 2026 प्री. एक्सपेरिमेंट नहीं करना है लाइफ के साथ. उस टाइम तक आप प्री के लिए रेडी हो या नहीं, वो तो आप मार्केट से पेपर लेके भी अटेम्प्ट करके कर सकते हो ना. डोंट डू दैट. और प्रिपेयर फॉर 2026. डोंट प्रिपेयर फॉर 2027. Jal Chaudhary is asking, hello sir, good evening. Presently I'm studying BBA first year college student. Should I prepare for UPSC, CSC और for CAT? बेटा देखो, अगेन आपको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है. ये दोनों ना अलग अलग फील्ड्स. यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेयर डू यू वांट टू ग्रो. वेदर डू यू वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज और यू वांट टू गो डू MBA प्राइवेट सेक्टर में. उसका डिसीजन ना मेरे को नहीं लेना चाहिए. मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बोलूंगा सिविल सर्विसेज में आ जाओ, बट दैट मे नॉट बी द राइट थिंग फॉर यू. व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू डिसाइडेड. इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आई विल बी एबल टू गाइड यू. बट आई कैन नॉट से कि तो आपका एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज का ही आपको यही करना चाहिए. नेवर. हाँ, ये कि आपको बीबीए प्लस कैट की तैयारी करनी चाहिए, बीबीए प्लस यूपीएससी. यू विल हैव टू टेक दिस कॉल योरसेल्फ. डोंट गो टू आइदर अ कैट का इंस्टीट्यूशन और अ सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन फॉर काउंसलिंग. वो अपना कोर्स ही बेचेंगे, है ना. नेवर डू दैट. ये डिसीजन आप खुद लो, फैमिली के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके, इन जनरल अपने एप्टीट्यूड को समझ के, रिस्क समझ के. And then, if you want to prepare for civil services, come to us. We will guide you. If you want to prepare for CAT, go to a institution जो आपको CAT के लिए गाइड कर सकता है. अभी आप मेरे इंस्टीट्यूशन में आके पूछोगे ना क्या करना है, जो मेरी काउंसलर है आपको बोलेंगे नहीं तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि इनका तो काम है ना कोर्स को बेचना. ये ऐसे ही बोलेंगे, सारे इंस्टीट्यूशन वाले ऐसे ही बोलेंगे ना. डोंट डू दैट. आप मेरे लिए छोटे भाई बहन हो, मैं आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं दूंगा. दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको हमारे पास आना चाहिए. इस गाइडेंस के लिए यू डिसाइड इट. Nittu Moni Malakar is saying he has 2 questions. Do we need to do NCRTs for the GS Foundation? Phase 1 for GS question, and what resources to use for value addition? हाँ बच्चा देखो, when you are reading polity, resources का एक अलग सेक्शन होता है. I'll make a separate video maybe next week. I'm planning to make a detailed video on resources क्या होने चाहिए. But in general, let's say पॉलिटी में आप क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ो. पॉलिटिकल थ्योरी वाली नहीं, थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें. जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली एनसीईआरटी है वो पढ़ो और लक्ष्मीकांत. इसके अलावा टेक मेंस नोट्स ऑफ सम इंस्टीट्यूशन. मेंस की ना कोई अच्छी किताब नहीं है. लक्ष्मीकांत इज देयर फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड ऑल. मेंस की कोई अच्छी किताब नहीं है. ऐसी ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़नी है, 10th 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है. Sometimes coaching institute के notes include all those dimensions already. You will not need to do it. It will depend on your source. History के लिए NCERT पढ़नी है, but if you are doing notes of Nikhil sir, then Nikhil sir is the best history teacher out there, and he ensures that NCERT में जो dimension है ना वो सब notes में रहेंगे.
तो इफ यू आर वाचिंग क्लासेस ऑफ निखिल सर एंड इफ यू आर डूइंग हिज नोट्स देन डोंट डू एनसीईआरटी, ही हैज ऑलरेडी कवर्ड इट। ऐसे ही साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी आप अगर मुझसे पढ़ोगे, मेरा प्रिंसिपल है कि बच्चों को ना एक ही सोर्स मिलना चाहिए, उससे सारी चीजें कंप्लीट हो। तो एट दैट टाइम डोंट डू एनसीईआरटी। तो हाउ विल यू डिसाइड वेदर यू शुड बी डूइंग एनसीईआरटी और नॉट? आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हो उसके बाद ना एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो और देखो, आपने रिवर सिस्टम पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, स्टडी एनसीईआरटी चैप्टर, डू यू फाइंड मोर थिंग्स इन एनसीईआरटी चैप्टर व्हिच आर मिसिंग हियर? तो आपका ये नोट्स इज नॉट गुड इनफ, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ो। बट आफ्टर स्टडिंग दीज नोट्स यू फील लाइक एनसीईआरटी के एवरी डायमेंशन इज कवर्ड हियर, देन नो नीड ऑफ कवरिंग इट। बट मैं बोलूंगा पहले 15-20 दिन में ना अपने आप को साइड में रखो, एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो एंड टू एंड, सो दैट यू बिल्ड अ बेस ऑन विच यू कैन गो फॉर मोर एडवांस्ड प्रिपरेशन। Sir, is there any plan for 2029? I'm pursuing BTech in Material Engineering at IIT Patna first year and started studying newspaper. सुभाष बेटा, 4 साल पहले ना 4 साल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अभी फर्स्ट ईयर बीटेक में हो, एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज बड़ा मस्ती से भरा होगा, चीजें सीखो, जानो। मान लो ना आप ऐसे सोचते हो कि यू वांट टू टेक मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल, इन दैट केस स्टार्ट चूजिंग, लाइक आपका ब्रांच कोई भी हो सकता है, बट इलेक्टिव लेने को आते हैं ना, इलेक्टिव में सारे मैथ्स वाले कोर्सेस लो, उसे अच्छे से पढ़ो। वो कॉलेज की पढ़ाई भी हो रही होगी और इसकी भी तैयारी हो रही होगी। और यू मे स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, यू मे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ बिट लेटर। जनरली 2 साल 2.5 साल काफी होते हैं प्रिपरेशन के, तो एग्जाम से 2-2.5 साल पहले प्रिपरेशन चालू करो। अभी थोड़ा कॉलेज के साथ एंजॉय करो, कॉलेज की चीजों को सीखो। 4 साल पहले से पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर देते हैं क्लास 9 से यूपीएससी की तैयारी करवाना, वो सब ना स्कैम है। अब बच्चों को लूटने का, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का, उनके प्रिपरेशन के नाम पे ड्रामा करने का तरीका है, वो सब कुछ नहीं है। तो एग्जाम से 2-3 साल पहले, क्योंकि पार्ट टाइम है, फुल टाइम होता तो 1.5 साल पहले। अगर पार्ट टाइम प्रिपेयर करोगे, आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर करोगे, यू कैन गिव ओनली 4-5 आवर्स अ डे। 2 साल पहले शुरू करोगे, इट विल बी गुड इनफ। आपको लगता है कि नहीं 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले शुरू कर ले, दैट्स गुड इनफ। पहले जीएस कंप्लीट कर लो, फिर ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, फिर सबको रिवाइज करते रहो। बट डोंट स्टार्ट राइट नाउ। रीड न्यूज़पेपर्स, गेट सम गुड हिस्ट्री बुक्स, एंजॉय देम। विपिन चंद्रा लेके आओ, यूपीएससी के लिए नहीं, विपिन चंद्रा की किताब लेके आओ, पढ़ो। थोड़ी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आओ, थोड़ा पढ़ो, जानो, समझो। फर्स्ट ईयर में एंजॉय करो, लिखना सीखो, ज्वाइन सम क्लब इन कॉलेज, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करो। देखो, द एंटायर एग्जाम इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। एंटायर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी अंदर जाएगी ना एग्जामिनेशन हॉल में, वो अच्छा परफॉर्म करके आएगी। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो ज्यादा नहीं पढ़ते बट प्री बहुत इजीली क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ना वो कॉन्फिडेंस से जाते हैं, ये तो मैं कर ही दूंगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। डोंट स्टार्ट डूइंग इट राइट। सर, नोट मेकिंग शुड बी डन एट व्हाट स्टेज? बेटा शुरू से ही। जैसे ना मान लो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा, आप निखिल सर की क्लास देख रहे हो, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्लास देखी, आपने नोट्स पढ़ लिए। अब 2-3 बार जब आपने वो नोट्स पढ़ लिए ना, नाउ यू नो कि आपको क्या की पॉइंट्स लिखने हैं ताकि वो पूरी चीज आपको याद रह जाए। एंड स्टार्ट डूइंग दैट। डोंट डू इट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। किसी भी बुक का, किसी भी सोर्स का फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स नहीं बनाने। मेक 2-3 रीडिंग्स and after that you make notes, because by that time you understand every aspect there properly. Sir, what should be the 2027 strategy for full-time aspirant? Please take a webinar on this. Arunima, beta, I took a webinar on this I think 2 weeks back, and वो ना YouTube पे भी है कि 2027 के लिए कैसे प्रिपेयर करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होंगे। वो YouTube पे भी डला हुआ है, एक बार वो देखिए। I took it 2 weeks back. Sir, currently I'm doing LLB first year. No, it's hard to manage the time for both. Even it was lagged my daily preparation. How to manage time for both parallelly? अच्छा बेटा देखो, सिंपल सी बात सर, अगर आपके एलएलबी के साथ यू कैन नॉट टेक आउट 4 आवर्स राइट नाउ, डोंट डू फुल प्रिपरेशन अभी। बस सपोज यू आर एबल टू टेक ओनली 1 or 2 आवर्स, गेट सम बुक्स, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट। आप देखो एलएलबी कर रही हो, यू मे चूज लॉ एज एन ऑप्शनल, आप लॉ ऑप्शनल के लिए साथ में पढ़ते रहो ना। आर वी गेटिंग इट? जरूरी नहीं है कि अब जब समय मिल ही नहीं रहा है तो डोंट बर्न योर मिडनाइट ऑयल एंड डोंट सैक्रिफाइस योर स्लीप एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट। कुछ नहीं होगा। एलएलबी अच्छे से करो, एलएलबी में बनो ना गोल्ड मेडलिस्ट, लॉ को बहुत अच्छे से जानो,
कि यार उतना टाइम लग रहा है तो पूरे डेडिकेशन से करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन हो जाएगी। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई कैन टेक आउट 4-5 hours, there is a lot of politics drama going on in office, in college, I will not engage with any of those things, I'll just attend classes, I will do my coursework, and उसके बाद मैं रोज 4 घंटे निकाल सकती हूँ, तो the strategy that we have discussed will be good enough. Sri Swati is saying that she is working professional and she'll be needing to prepare for 2027. In the first phase, how does she evaluate how well she is doing? Beta, your evaluation, जैसे you said कि should it be on the basis of how many PYQs we are able to complete? No. In the first phase, you attempt PYQs, and if you are not able to do those PYQs, add content related to those PYQs in your notes and keep preparing. जब आप next revision में आओगे, you'll be able to solve all the PYQs, and that is how you evaluate yourself. First phase में, if you are able to write, attempt all the PYQs, MCQs, and all the PYQs subjective test, you are on the right track. Arjit Mandal is saying, sir, I'm 24, working corporate, BTech, Agri graduate, recently resigned. Under my notice period for 3 months, I'm planning to opt for offline classes, but maximum coaching starting in November, so I can't directly join the offline lecture till Jan. Beta, abhi November mein we are starting a batch. We'll also be starting a batch in January. You know, you can join that batch. हाँ, वो होता है ऑफलाइन में भी. जनवरी में विल बी स्टार्टिंग अ बैच, यू कैन कम देयर. And your parents are supporting you in every possible way. That's perfect. Arun is asking, now I'm in my BA first year. How can I start preparation for UPSC from now only? I've taken the science stream in PUC. It's feeling difficult to understand humanities subject. You're a BA first year student. You have taken the science stream. ठंड लग रही है आपको? पीछे चले जाइए या आगे हो जाइए. I've taken the science stream in PUC. Beta, what is PUC? Any idea? It's feeling difficult to understand humanities subjects. Beta, humanities are the simplest subject to understand. You just have to read them multiple times. Once you get into the groove, start reading. Arun, first thing that you do is you start reading NCRTs. Go pick up NCRTs from class 6 to class 12. Forget about the exam. You first start reading them, start understanding them. In 1 or 2 months, you will be like, now I know art subjects. And you can come into full-fledged preparation. Sir, I'm preparing for UPSC pre-2026 but want to enroll this course also. How can I manage? Beta देखो, if you are preparing for UPSC pre-2026, आप इस कोर्स में, GS फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि यहाँ पे हम ना पहले शुरू में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी यही सब कराएंगे, और ये आपके प्री में भी काम आएगा, राइट? बट मेरा रिकमेंडेशन है कि 2027 को ही अटेम्प्ट करो. बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 2026, दिस इज व्हाट यू कैन डू. बट अगर आप 2027 नहीं 2026 को ही अपना मेन अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, तो डोंट ज्वाइन 2027 कोर्सेस, रादर ज्वाइन 2026 कोर्सेस. इट मे बी PMP which is starting on 17th November, where you will prepare you for preliminary examination exhaustively over the next 3 months. Sara is saying, I'm really good at absorbing knowledge and covering syllabus fast. I completed modern in 2 days and remember everything, but I have a problem making notes and staying consistent. What can I do to try to fix it? Beta, if you're saying you're very good at remembering things, or 2 दिन में you are able to complete modern, so why do you have to make notes? Rather, you attempt all the PYQs and subjective questions जितने आए ना PYQs में, उनके notes बना लो. If you can complete the entire book in 2 days and remember everything, you have an excellent memory. You are our Sheldon Cooper. Why make notes specifically? वही book को underline कर लो, mark कर लो, वहां से पढ़ो. Nitumani Malakar is saying, should we do NCRT from 6 to 12 or 11, 12th is good enough? Beta, देखो, if you think you're very weak in art subjects and you don't know anything and you want to prepare with self-study, तो पहले ना in 1 month, rather than starting to prepare for civil services examination as such, just go through NCRTs of class 6 to 12. But if you are preparing for
civil services examination from the beginning and you're joining some course, then don't go for all the NCERTs. Course में कैसा coverage है, the teachers will be able to tell you which NCERT to cover, which not to cover. Sir, what in your opinion are the best free resources one can utilize? As you mentioned the open mock test, there are many free questions provided for daily answer writing also. Sir, can you kindly recommend some other advantageous resources for aspirants with financial constraint? Also, one recommendation, the session with ex-panel members and bureaucrats were so fruitful as an aspirant preparing from home. Kindly hold more sessions like this. It was so beneficial. हाँ ठीक है, we'll have more sessions. बेटा free resources में ना again अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीजें हैं. Let me do this. Next week, let me take a session on resources only. वहां पे I'll talk about free resources also. I'll talk about कौन से subjects कैसे पढ़ सकते हैं. वो एक अलग subject हो जाएगा. Let me compile all those things and come back to you. अभी अगर आपको कुछ शुरू करना है, start with let's say economy. मैंने economy के फाउंडेशन की सारे लेक्चर्स लास्ट ईयर मार्च में यूट्यूब पे डाल दिए थे. You can complete that for now, so that you don't waste next 1 week. Sir, I'm enrolling in 2027 level up course. Should I make notes while attending the lecture or only watch lecture and after 3 readings of handout make notes? Don't start making notes from the very. आपको handouts मिलेंगे, आप क्लास में handouts में चीजें लिखिए and then revise these handouts 2-3 times. उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नोट्स बनाएंगे. Before 3 readings of your notes of your book or any source that you're doing, don't start making notes, else you will end up doing what? You will end up making bulky notes because आपको लगेगा यार मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नोट कर लेते हैं, ये भी नोट कर लेते हैं. All these things will create problems. Yes बेटा. तमन्ना बच्चा, current if you are in second year right now, तो in 2026 you will be in 2026 you will be in third year. एंड 27 में आप क्वालिफाई 27 में आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट प्रोवाइडेड ऑन 1st of August 2027 यू हैव टर्न्ड 21. तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उस हिसाब से टेक अ कॉल. सर एनसीईआरटी सर इनफ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा. एनसीईआरटी सर जस्ट बेसिक फाउंडेशन, दे आर नॉट इनफ. Sir, I'm preparing for GPSC, but GPSC please more current affairs oriented than UPSC. Will foundation course at level up cover GPSC? बेटा it will not cover GPSC, but it will cover current affairs. मैं current affairs का ही टीचर हूं और आपका जून से सारे current affairs की क्लासेस साथ में हो रही होंगी. Yes, Mohin, you're right. If you're studying for 5-6 hours, if you have a job of 5-6 hours, you join the 2027 course and keep working with it systematically and it would keep you on loop. देखो हमारा जो कोर्स होगा 2027 के लिए उसमें ना हर संडे को टेस्ट होगा. तो क्या होगा ना, सैटरडे को you will be pressurized to study properly so that you are able to attempt test. You should do that. NCERT 6 to 12 class have to study all few नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इनकी एनसीईआरटीज पढ़िए और साइंस की क्लास 9 की एनसीईआरटीज पढ़िए, क्लास 9-10 की एनसीईआरटीज पढ़िए और कुछ नहीं. एंड दैट इज फॉर योर फाउंडेशनल प्रिपरेशन. ओके, तो आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव नॉट टेकन, रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए. I will take a separate 1 hour session where I'll list down all the resources which students should be taking. Maybe next week I will take this session and we'll talk to you about all the free resources which are there and all the things that can be done through coaching and all. We'll talk about it. Abhi aapko first go through PYQs or after reading going through PYQs, which would be better? Beta, पहले आप पढ़ाई करो फिर PYQ देखोगे ना. पहले going through PYQ you won't understand most of the things. You may be having history background, but you don't have, let's say, science background. You don't have environment background. You don't have economy background. So when you go through those PYQs, you won't understand anything. Okay. So first study and then do PYQs. When will Level Up IAS 2027-28 mentorship will start? बेटा 2027 का mentorship एक तो हमारा जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, फिर जून में भी स्टार्ट होगा, जुलाई में भी स्टार्ट होगा. Will go like that. Mentorship will be starting that वैसे. But देखो, mentorship should be done by students जिन्होंने foundation करा हुआ है. If you haven't done foundation, join foundation and there we include mentorship also.
at the right time will keep doing everything. Will there be mentorship in 2027 foundation course? Yes, bacha. Right from the beginning till your mains examination, you'll have mentor available with whom you can sit, ask your doubt, everything. It is part of the program. देखो, Level Up IAS या GS Foundation program में everything that is needed for your preparation except optional subject is there. पूरा GS का preparation, essay का preparation, CSAT का preparation, current affairs का preparation, weekend पे test, prelims test series, mains test series, pre ka revision, mains ka revision, essay, everything is part of your program. If you join foundation course at Level Up IAS, except for optional, you do not have to join anything either here, either at Level Up or anywhere else. Ayush is asking, sir, will there be mentor for each individual student or a group of mentor? नहीं बेटा, हमारे यहाँ mentor individual student को मिलता है. ऐसा नहीं होता कि 10 बच्चों को एक साथ बुला के मेंटरिंग कर रहे होंगे. देखो, आपका ना हर संडे को टेस्ट होता है. टेस्ट के बाद जनरली क्या होता है ना, बच्चा जाके मेंटर के पास बैठता है, उससे रिव्यू लेता है, फ्यूचर स्ट्रैटेजी समझता है. तो वो ग्रुप में थोड़ी हो सकता है, वो तो आपका इंडिविजुअली होना पड़ेगा ना. तो मेंटरशिप इज नॉट डन इन ग्रुप, मेंटरशिप इज डन इंडिविजुअली. हाउ टू स्टार्ट सेल्फ प्रिपरेशन? बेटा मैंने आपको समझाया ना, यही मेथड. You can do it through classes, you can do it through self preparation. Just watch this video from beginning. We'll upload it on YouTube also. Watch it there and you'll be able to understand. Okay. Chali, I think this is it. I hope the session was useful. You have been able to understand. I have been able to resolve some of the doubts you may have. Let me very soon, within a week, take a session on resources that should be utilized फॉर योर प्रिपरेशन. अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, वी विल डू दैट. प्लीज सेंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. ये यार व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं बना सकता, बट आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा, वहां पे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक आपको भेजते हैं. Sir, the online foundation course will be suitable for working professional? Yes, definitely. It will be suitable. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much.